Yeah, hi. Hello everyone. So in this video, we are going to solve the problem number 1462. That is course schedule 4. There are course schedule 1, 2, 3, I guess. You can check it out on lead code. So the problem statement is as follows. That there are total number of num courses. We can see it as n. You have to take, like there are n courses you can take, labeled from 0 to n minus 1. And you are given an array of prerequisites where prerequisites of I is AI comma BI indicates that you must take course AI first if you want to take course BI. That means if BI is given, so to take BI you must have taken the AI course, otherwise you can't take it. So for example, they have mentioned it that for the pair 0 comma 1 indicates that you have to take course 0 before you can take course 1. Okay, prerequisites can also be indirect. If course A is prerequisite of B, that means A is prerequisite of B, and course B is prerequisite of C, that means B is required for to be taken before C, then course A is also prerequisite of C. Okay, basically transitive relation, I hope you guys have studied before. So transitivity is there ki if A is required for B and B is required for C, then we can say that A is required for C eventually. So this is what they are mentioning in this line. And you're also given an array of queries where queries of j is uj comma vj, where for the jth query you should answer whether uj is prerequisite of course vj or not. Yeah, so they have given us bunch of queries. Okay, so queries, and they have mentioned that u comma v. So we have to check that if u is u required to take course v. If yes, then we have to answer true, or if no, then I have to answer false. Okay, so it's pretty simple, straightforward question, I would say. So look, you also, if you have any knowledge of DFS or any knowledge regarding graph, then you would have got this idea of to approach कि यार हाँ ठीक है, अगर मुझे ए टू बी पता है, बी टू सी पता है, सी टू डी पता है, और मान लो कि सी टू ई भी पता है समाओ, और somebody ask me कि बी टू ई है क्या, तो मैं बस सिंपल देखूंगा कि यार पहले बी टू सी है, मतलब कि ठीक है, बी टू ई तो डायरेक्टली नहीं पता, मतलब कि सी टू ई है, मतलब कि अच्छा ई मिल गया ना, तो यस आई कैन से दैट यस इट्स ट्रू। लाइक कोई बोले कि क्या डी टू ए है क्या, मैं बोलूँगा कि एक सेकंड, डी से तो डिपेंडेंट कोई है नहीं, मतलब डी किसी का डिपेंडेंट तो है नहीं, किसी की डिपेंडेंसी तो है नहीं, तो फिर obviously we can't say that कि this is true, so you have to answer it as false. So, और somebody, if somebody asks a e का है क्या, बोले कि हाँ एक सेकंड देखते हैं, कैसे देखेंगे, सिंपल है, कैसे चेकआउट करेंगे कि है या नहीं है, बोले कि a का b है, मैंने कहा ओके, b का c है फाइन, c का d है, बोले कि आई डोंट नीड इट, बट यस c का e है, तो अगर c चाहिए e के लिए और C के लिए B चाहिए, तो I can, from these thing I can say that B is required for E, and from this statement I can say that A is required for B. So and B is required for E, then I can at the end say that A is required for E. So basically it's kind of this transitivity we need to find at the end, that are the dependency exist or is the dependency exist or not. So as for that we have to return it, and the courses can range from 2 to 100, and the and also the queries length can be of 1e4, and the courses are can be of 2 to 100. So yeah, the range is pretty decent, like it's not a very hard also. You need to considering it's a simple DFS or BFS call can make this happen. So if you want to check it out, like there is a pre requisites of 1 2, मतलब कि दो के लिए 1 चाहिए, 0 के लिए 2 चाहिए, 0 के लिए 1 चाहिए, तो इसलिए अब क्वेरीज क्या पूछा है कि क्या 0 के लिए 1 चाहिए, मैंने कहा कि यार ये तो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने कहा यस। क्या 1 के लिए 2 चाहिए, मतलब 2 के लिए 1 चाहिए, बोला कि यस दिस इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, सो ट्रू। इवेंचुअली यार यू गाइस कैन लिंक इट टू द ट्रांजिटिविटी दैट आई हैव डन हियर। सो अगर तुम्हें कोई ग्राफ के सेंस में चाहिए तो ऐसे देख सकते हो, ए टू बी है, सी है, डी है, और ई ऐसा है, तो इफ समबडी आस्क क्या ए टू ई है, तो लाइक यस ऑब्वियसली है ना, सिंपल ही होगा, है ना, कोई बड़ी बात है नहीं। सो जस्ट लीव इट। सो देर आर दिस लाइक टू अप्रोचेस, है ना, टू अप्रोचेस दैट आई गॉट एनकाउंटर्ड विथ, कि एक मेरा, एक माइन, वन माई फ्रेंड डिड इट, ओके,
I wouldn't take his credit. So what I did for each query, I just simply ran a DFS saying that this is my source, this is my destination. For u and v, I said ki source is u, destination is v. If somehow I am reaching that v is there, then I would say that yes, else no. So this I said, but at the same time what my friend did is he said ki before checking queries, what he did, उसने बोला कि यार let's say n number of courses are there, है ना, number from 0 से n minus 1. He said कि why not to check कि if 0 is the required component of 1 से लेके n minus 1, 1 is, if 1 is required for 0 से लेके 0, 2 से लेके n minus 1, is 2 is required for 0 से 1 and 3 से n minus 1. So basically he did this matrix thing. For 0, 1, 2, 3, let's say n is equal to 4. So if ये तो छोड़ दो, ये वाली डायगोनल छोड़ दो, मतलब कोई सेल्फ लूप, एग्जिस्टिंग लूप नहीं है यहाँ पर, आपने नोटिस किया होगा. तो yes, there the prerequisite graph has no cycles. There is no cycle to worry about. So yes, what he did is he took this dependency matrix कि अगर 0 1 का डिपेंडेंट है तो 1, otherwise 0. If 0 is dependent upon 2, let me wait a second, it's syncing, the video is syncing currently. Yes, it got sync. तो हाँ, अगर 0 2 के लिए अगर 2 कोर्स लेने के लिए 0 रिक्वायर्ड है, then I would say 1, else 0. Similarly, if to take course 3, if I need this 0, then I would say yes, otherwise 0. So in the same way, he first computed it. First dependency matrix computed, ठीक है. अब क्वेरी आने के बाद क्या बच गया? क्वेरी आ रहा है u और v. तुम बस जाके चेक कर रहे हो कि इस ग्रिड का u और v, अगर आंसर 1 है तो 1 रखो, 0 है तो 0 रखो, बस इतना ही करा उसने. So both of these are pretty good ones, you know, like they are one is consuming a little bit space, yet minimizing time complexity. We'll discuss how the time complexity is being consumed in these two algorithms. And the first one is the my approaches is taking a 0, like it's taking only n 1e and 2 space, like at a max of hundreds integer space, and the time complexity remaining the 1e 4 only. I'll discuss that too. This time complexity remaining bit higher than the second approach. So let's discuss the first one. So what I did is, this is our main function. So I at first did this adjacency matrix. I just note down कि एक के साथ कौन कौन है, मतलब मान लो कि a b है, a is डायरेक्टली अगर गिवन है कि a के लिए b चाहिए, सॉरी b के लिए a चाहिए और c के लिए a चाहिए, तो मैंने कह दिया कि यार a के साइड में ना b और c नोट करके रख दो. तो ऐसा मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना दिया. तो या मेरा भी स्पेस काइंड ऑफ लग रहा है. So I can say that I am also consuming n square space. So yeah, that's not a big deal. So adjacency list बना रहा है. अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक विजिट बनाया जो कि मैं मार्क करके चल रहा हूँ. ईच DFS कॉल करूँगा ना मैं कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक रीच करना है मुझे, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक रीच करना है. तो मैं जंप करते करते वो ट्रांजिटिविटी का यूटिलाइज करते देखते जाऊँगा कि क्या मेरे टारगेट डेस्टिनेशन पे रीच कर रहा हूँ क्या, किसी भी पॉसिबल पाथ से इस सोर्स है. अगर हाँ तो आई विल बी स्टोरिंग यस, अगर नहीं तो फिर आंसर नो. तो यस, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अलावा यहाँ पर एक आंसर वैल्यू ले रहा हूँ जहाँ पर कि या तो 1 या फिर 0 स्टोर कर रहा हूँ मैं. ओके, नो डाउट, आई गॉट इट. सो यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा. यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेरी के ऊपर चला रहा हूँ. सोर्स इज द फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट and the destination is the second index element, and I am running this DFS loop with this source comma destination with this adjacency matrix and visited graph. कि each visit के लिए, अब सोचो हर इंडिविजुअल कॉल के लिए विजिट अलग लगेगा. एक बारी 0 से 1 से 2 से 3 अगर है और मैं कॉल करके ये पता लगा रहा हूँ कि 0 से 3 यस है या नो है, पर तुम
मैं ये नहीं कर रहा कि इस रास्ते को ट्रैवर्स करते टाइम मैं ये एश्योरेंस नहीं कर रहा कि 1 से 3 वाला भी मैं मार्क कर रहा हूँ, तो मुझे हर उसके लिए डिपेंडेंसी के लिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो हर वो कॉल के लिए मैं एक स्पेशल विजिटेड वेक्टर यूज कर रहा हूं जिसमें हर एक को मैं नॉट विजिटेड मार्क कर रहा हूं ईच टाइम, है ना। हर बारी मैं जो डीएफएस कॉल कर रहा हूं मैं उस टाइम पे हर बारी मैं ये अपडेट कर रहा हूं कि यस फॉर दिस टाइमिंग all of the nodes that are existing in my graph I haven't visited yet and I will be visiting if needed in this particular DFS call, and for the next time I am reassigning all the visited or not visited as 0 again so that कि freshly मैं एक DFS call कर सकूं with the same source and this destination. Okay, everything is cool. So what am I doing in this DFS call is, so this source and this destination, if at some point is matching, so what am I doing, let's see, a से b से c जाने से पहले मेरे को किसी ने पूछा a से c है क्या, a से d मान लो, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब मैं इनिशियली देखा a है, मैंने कहा कि भाई ये टारगेट है मेरा, ये d मेरा टारगेट है, टारगेट को मैंने यहाँ पर मतलब डेस्टिनेशन बोल दिया, ठीक है। करंट सोर्स मेरा ये है, करंट सोर्स मेरा ये है, मैंने देखा कि भाई ये बी पे कनेक्टेड है, मैंने कहा ओके नेक्स्ट डीएफएस कॉल में इसे सोर्स की तरह ट्रीट करो। मैंने कहा कि क्या भाई कोई कनेक्टेड है क्या जो कि डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है, कि नहीं यार सी कनेक्टेड है। मैंने कहा ओके अभी सोर्स को यहाँ पर लाओ, पहले यहाँ से यहाँ आया था ए टू बी, अब बी टू सी, नेक्स्ट डीएफएस कॉल में सी को एज ए सोर्स ट्रीट करके मैं आगे कॉल कर रहा हूँ। फिर जब मैं नेक्स्ट कॉल किया होगा ना कि सी से डी, तो डी को ही मैं एज ए सोर्स कॉल कर रहा हूँ जो कि खुद में ही एक डेस्टिनेशन है। तो मेरा जो बेस केस में बना रहा हूं यहां पर मेरा रिकर्जन को एंड कराने के लिए कि इफ सोर्स इज इक्वल डेस्टिनेशन देन आई एम रिटर्निंग इज ट्रू। और क्या कर रहा हूं उस, ये तो हो गया हमारा बेस केस कि कहां मेरा फंक्शन एंड हो रहा है और कौन डिटरमाइन कर रहा है कि यस आई हैव गॉट द डेस्टिनेशन, कि अगर करंट जो मेरा सोर्स की तरफ डीएफएस कॉल हुआ था क्या वो मेरे डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है, इफ यस देन आई एम रिटर्निंग इट ट्रू। बट उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से इट्स नॉट मैचिंग फॉर द फर्स्ट केस, वी कैन सी दैट the first source is A, the second it is connected to the adjacent node, it is connected to is B, so B is not D, so I can't for now I can't say that if A is connected to D, so I am just making this visit of source as visited, source जो current है मैं उसको visit mark कर रहा हूँ और मैं उसका adjacent देख रहा हूँ, मैंने इसका adjacent स्टोर कर रखा था, ठीक है, मैंने इसका एडजेसेंट स्टोर कर रखा है। अब मैं जाके क्या कर रहा हूँ, एडजेसेंट ऑफ सोर्स डॉट साइज में चला के एडजेसेंट ऑफ सोर्स ऑफ आई ईच इंडेक्स जो कनेक्टेड है, जो नोड इस सोर्स से कनेक्टेड है उनको देख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या आर दे ऑलरेडी एज अ न्यू सोर्स आई एम राइटिंग इट, है ना। द करंट सोर्स इज एसआरसी and new SRC is the new source that I am wishing to traverse upon. So मैं उसे बोल रहा हूँ कि या ये ऑलरेडी विजिटेड है, अगर है तो इसका ये मतलब है कि ऑब्वियसली मैं उसे देख चुका हूँ, उसका फाइनल आंसर नहीं आया होगा, ट्रू नहीं आया होगा, अदरवाइज मैं क्यों करंट कॉल पे क्यों आ रहा हूँ, है ना। तो मैंने देखा कि अगर नहीं है, इफ के बाद अगर यहाँ आ रहा है मतलब कि जो करंट एडजेसेंट नोड ए टू बी कनेक्टेड था, बी विजिट नहीं हुआ, मैंने कहा कि एक बारी करो डीएफएस को कॉल करो, न्यू सोर्स को एज ए करंट सोर्स भेजो और डेस्टिनेशन तो डेस्टिनेशन ही रहेगा, एडजेसेंट तो हमें चाहिए था, विजिट हमें चाहिए था। अगर ये इफ है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है, डीएफएस इज रिटर्निंग या तो 1 या फिर 0, ये चलेगा, ये नो डाउट चलेगा। पर अगर ये ट्रू आया ना जब भी इस ब्लॉक के अंदर आएगा, अगर ट्रू आ गया तो फाइनली ये ट्रू कर दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक नोड है, एक करंट नोड यू है, उससे 10 एडिशन नोड हो सकता है, पर थर्ड नोड से जाके मुझे मेरा डेस्टिनेशन मिल रहा है। अगर मुझे मिल जा रहा है ना, मैं जब भी रिटर्न कर दे रहा हूँ। अगर नहीं मिला, ये सारा कंप्यूटेशन के बाद ये सारे कंप्यूटेशन क्या हो रहा है कि मैं करंट सोर्स से सारे एडजेसेंट को ट्रैवर्स करके देख के आ गया कि भाई कोई भी नहीं मिला, तो मैं रिटर्निंग इज फॉल्स। अब यहाँ पे जब फॉल्स हो जाएगा, मैंने इस मेन क्वेरी से जो डीएफएस कॉल इनिशियली कॉल किया था, तो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा नहीं और मैं आंसर ऑफ आई को ट्रू कभी मार्क करूंगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट तो ये जीरो ही रहा होगा, और वो जीरो ही रह जाएगा, है ना। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा से रीअसाइन कर दे रहा हूँ। तो यार बेसिकली यही था डीएफएस कॉल, था सिंपल डीएफएस कॉल। इफ आई एम सेइंग अगेन, इफ somebody is not aware of this DFS or BFS concept, so please let me know in the comment section. I'll be happy to discuss with you guys कि how the BFS and DFS
works in the graph when visiting the graph. So if you need concept clarity, then you can ask me, or you can refer anybody else's video that is available on YouTube. uh, just get your concept cleared, है ना. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, ऑब्वियसली यार ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ कि n स्क्वायर लग गया, n स्क्वायर दैट इज अप टू 1e4, क्योंकि n की वैल्यू तो 1e2 तक जा रही है ना. अब यही सबसे बड़ी एडजस्टेंट लग रहा है, ये तो सिंपल लीनियर स्पेस के चल रहे हैं. तो मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आया मेरे कोड का, दैट गॉट ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर दैट कैन गो अप टू 1e4 साइज का, मतलब 10,000 इंटीजर साइज का. अब यहाँ पर ये चल रहा है ऑर्डर ऑफ n टाइम में. अब टीसी की बात कर रहा हूँ, टीसी की बात कर रहा हूँ, है ना. ऑर्डर ऑफ n टाइम चल रहा है यहाँ पर. ये चल रहा है, ये क्वेरी साइज चल रहा है ऑर्डर ऑफ 1e4. क्वेरी का लेंथ है, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, क्वेरी का लेंथ है दैट कैन गो टू 1e4, एंड क्वेरी का लेंथ है 1e4, और वहां पर साइकिल है नहीं, और मैं विजिटेड का मार्क करके चल रहा हूँ, तो मैं हर नोड पे सिंगल टाइम जा रहा हूँ, तो डीएफएस कॉल कैन टेक अप टू n. तो मेरा जो n की वैल्यू 1e2 एट मैक्स, तो मेरी जो ये कॉल है दैट कैन गो ऑफ टू 1e6, ऑल्दो इट इज इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बट इट इज नॉट द ऑप्टिमल वन. Anna, I'm prioritizing. Yes, I'm accepting that I have written a bit less optimized code. Yet it was working. 1e6 can run now. 1e7 up to 1e7 our code can run if no other operation that we are performing. I have this idea. I guess it's true. And the time complexity is it is taking 1e6, and the DFS call itself is n. I don't need to come think about it. The recursive call stack is n, and the auxiliary space is also n. The overall space complexity is of order of n square in my code, and the time complexity can get to 1e6. The better approach that my friend did is what he did. He at first made this pre-array, है ना, pre-array. He did this pre-array concept. What he did in it कि उसने बोला कि जीरो से लेके 1 से लेके n-1 तक सबके साथ पहले अगर डिपेंडेंसी है कि इनमें से किसी को चाहिए हो क्या जीरो, तो उस i और j इंडेक्स पे जाके, i और j क्या, ये 0 और j पे जाके तुम उसे 1 मार्क कर दो. मेरे फ्रेंड का अप्रोच ये था कि 0 और j कैन गो फ्रॉम 1 टू n-1. किसी भी पॉइंट पे जाके अगर किसी भी अदर को 0 चाहिए तो उस 0, j इंडेक्स पे जाके 1 मार्क कर दो. अब उसके लिए उसने क्या करा, पहले तो एडजेसेंट मैट्रिक्स में उसने स्पेस, वही मेरे जैसा कि भाई डिपेंडेंसी तो चाहिए, किसको क्या कितना डिपेंडेंट है, कि भाई ए को ए डिपेंडेंट, ए इज रिक्वायर्ड फॉर बी, ए इज रिक्वायर्ड फॉर सी. तो उसने पूरा ही एडजेसेंसी लिस्ट बना दिया कि भाई ए के लिए ना ये बी सी डी जो चाहिए सारा ये एडजेसेंसी लिस्ट में बना दिया इसने. अब उसने बनाने के बाद क्या करा कि ये एक बारी ना ये क्वेरीज है, क्वेरीज को जाके पूछने से पहले ये प्री का कंप्यूट करने को सेट करा कि प्री को सेट कर दूं, सेट प्री, है ना. एक सेकंड यार, सेट प्री. तो इसने क्या करा, सेम हर एक कॉल के लिए इंडिविजुअली तुम्हें मार्क करना पड़ रहा है. क्यों मार्क करना पड़ रहा है मैं दोबारा बता रहा हूं कि तुम ए से बी से सी के लिए तुम और डी के लिए तुम ए टू डी का तुम इस कॉल में कंप्यूट कर रहे हो, नो डाउट ए टू डी का कंप्यूट कर रहे हो, पर तुम कहीं पर भी ये नोट नहीं कर पा रहे हो कि बी टू डी भी एग्जिस्ट करता है. अगर if somebody has done it, so please refer me in the comment section. Please ping me in that section so that I would also love that, because I haven't did any much of research on it. But yes, if it can be done, then why to smash our head in more optimizing? Yet we could have done it if it's possible. So yeah, if anybody has done this approach कि हाँ भाई A B C D तक जाते टाइम A to D भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ B to D भी कर दे रहा हूँ, ये अगर किसी ने करा एफिशिएंटली, प्लीज रेफर इन द कमेंट सेक्शन. सो इसने क्या करा कि फिर से वही विजिट वेक्टर को 0 इनिशियलाइज करा, क्योंकि भाई फ्रेश स्टार्ट कर रहा है ये हर बारी कॉल में. और इसने क्या करा, आई के लिए कॉल कर डाला. उसने बोला कि भाई आई से शुरू कर रहा हूँ, आई से जो है सबको मैं मार करता जा रहा हूँ. कैसा करा वो देखो भाई, ये आया. अब यहाँ पर वो BFS कॉल लगा दिया. BFS कॉल इन द सेंस कि जब तक क्यू में तो इनिशियल नोड था, ये जो इनिशियल नोड आया था ये इसमें डाल दिया. अब बोल रहा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक ये करता जा रहा. क्या कर रहा है, करंट नोड निकाला, विजिट ऑफ कर मार्क कर दा कि मार्क विजिटेड. अब इसके बाद ये कर रहा क्या कि भाई नोड से तो शुरू हुआ था,
जो करंट जो निकला था उस क्यू से ना, अगर क्यू से निकल रहा है दैट मींस देयर इज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ from node, the initial the I the call that we have done here has a direct or indirect edge to this current node. अब इस केस में आप क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई ये तो फिर सेल्फ लूप वाली चीज होगी. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वी कैन लीव इट, वी कैन लीव इट. अगर आप ये बता भी दो कि हाँ भाई if node is not equal to curve, you can do it. Okay, you can do it too. That's not an issue. We don't have any concern about cycle in this section, so you can just skip it. Otherwise, if somebody is concerned about it, so you can go with it happily. You can write this condition. उसने क्या करा कि करंट नोड जो कर था उसको, नोड जो इनिशियल कॉल जिसके लिए हुआ था उसको मार कर दिया कि यस देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज बिटवीन नोड से लेके कर तक. ये कर दिया. अब करंट को पॉप कर दिया कि भाई इसका काम होगा, निपट गया, उसे निकालो. अब ये कर क्या रहा है, x इज फॉर द ऑल एडजेसेंट. अब सोचो ना, अब सोचो a से b डायरेक्ट था, मैंने बोल दिया a और b यस ट्रू. पर मान लो b से c भी था, b से d भी था, तो मैं ये पाथ फॉलो करके a टू c तक पहुंच पा रहा हूं, मैं ये पाथ फॉलो करके A टू D तक पहुंच पा रहा हूं. तो मैं जब दोबारा से इसके B के एडजेसेंट को देख रहा हूं जो नॉट विजिटेड है उसको मैं पुश कर दूंगा, तो नेक्स्ट लूप आइटरेशन में पॉप होके ये मार्क करवा देंगे कि यस A टू D एग्जिस्ट करता है एंड यस A टू C ऑल्सो एग्जिस्टिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज. So this is what is done in this part of the code. Okay, so let's talk about the time and space complexity. I hope you guys are getting it, है ना. मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ. I guess you have understood it, क्योंकि थोड़ा DFS का ही लॉजिक है, BFS का लॉजिक है, and I hope you are getting it. If you are not getting, please don't miss out. Just ask me any of doubt. Whoever is watching it, please ask any doubt you are getting. Okay, so basically this run can go up to order of n. No need to worry. This single visit is getting marked, so only at max you can go up to n iterations. And talking about the space complexity is, yes, space is n square, that is of 1e4. अरे भाई ये इतना बड़ा कैसे हो गया? Yes, n square that is of 1e4 plus 1e4, क्योंकि ये एडजेसेंट भी है ये भी है, तो we can just simply say that 1e4 तक जा सकता है. और ये जो VFS कॉल है ये भी जा रहा है सिर्फ n स्क्वायर, दैट मींस 1e4. देख रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस कहाँ आया, कि हर क्वेरी के लिए मैं रन कर रहा था पर मैं स्टोर नहीं करा रहा था, है ना. हर क्वेरी के लिए मैं रन करा रहा था पर मैं स्टोर नहीं करा रहा था. पर हमारे दोस्त जनाब ने क्या करा, उन्होंने स्टोर करा दिया. एक बार उन्होंने स्टोर करा दिया तो हर क्वेरी के लिए बस क्वेरी टाइम चलना पड़ा, तो क्वेरी कैन गो अप टू 1e4. तो भाई उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया 1e4 and space remained same as ours, that is 1e4 also. So yes, this was the difference, and these are the two ways that you can approach. And also you might be having some different ideas, है ना. टॉपोसोड वॉपोसोड कुछ कर दें कि सॉर्टर रखें कि इसके आगे एग्जिस्ट करता है, तो वही है, यू कैन डू इट इन वेरियस वेज, है ना. At the end eventually you will be traversing all the nodes and you will be finding the dependencies, है ना. So yes, that's all for today's videos. So I hope guys you have liked, I hope you guys have liked it, and I wish you all the best for this question and for the next whatever the question you are solving. And until the next video, take care guys, bye, and ping me on the comment section that you are watching it. I feel like nobody's watching, so someday you might watch it, and I'll be more than happy that you are watching. So please just drop a message, don't like or share it, just drop a message that I'll know it. Okay, take care guys, bye.